Hello my lovely souls, welcome to my channel. Today we are going to see how will be your relationship with your future spouse. So it's a general reading, so take only those messages which resonates with you and leave the rest. So as always we have two groups, group number 1 and group number 2. Use your intuition and choose any group which you have drawn into, and I will meet you at group number 1. Hello group number 1. Today we are going to see how will be your relationship with your future spouse. So we have 6 of Wands card, 10 of Cups, 6 of Pentacles, playfulness, awareness and ordinariness card. So first we have 6 of Wands. So you will have a successful relationship with your future spouse. Your imagination regarding this relationship is going to be fulfilled. In other words, your manifestation will become reality. Your universe wants to tell you that if you have any fear or doubt about how your married life will be, then it's your time to relax, because the universe has stored the best for you, and both of you will be a power couple. Other will be inspired from your relationship with your spouse. Next card we have 10 of Cups. So your relationship will be contentment to both of you. Your future spouse will be your best friend like energy I'm getting from this card. In this connection you both will be feel blessed, as 10 of Cups also talks about group activities. So if you have any business idea and looking for a partnership, then your future spouse could be that person. With your future spouse you will be emotionally fulfilled. And this card talks about wish fulfillment. So after your marriage, one of your big wishes is going to fulfill. Next we have 6 of Pentacles. So your future spouse will be a rich person. No doubt that you will be you could be a rich person, or you can be a rich person, but your future spouse will be also rich. In this connection I can see that you both will give each other lots of gifts. So gift giving may be one of your person's love language. So your partner will be very supportive to you. They will support you, and both emotionally and economically. If both of you believe in equal give or take, then this mentality will boost this relationship. The next card here we have is playfulness. So in this relationship, no matter how much no matter how much busy lifestyle you have, but in this relationship you will find each other light-hearted and fun-loving. Your person will love to make you smile. So they may tell you lots of joke. With this person, your innocence, inner child will come into surface. You know that this person will cherish you and your relationship till their last breath. The next card here we have is awareness. So with this person or your future spouse, you both will go further into a new spiritual journey. You will be able to see why some incidents or events happened with you. In this relationship, your sixth sense will grow strong. You will be more aware, and both of you will help each other to overcome from any illusion. The last card here we have is ordinariness. So at this marriage, you both will find happiness, beauty at simple things of your day-to-day life. The energy I am picking here is that both of you will enjoy each other's company. You both will help each other at ordinary tasks, like you two may love to cook a meal together, cleaning the house, cleaning your dishes. Basically you both will find interest to be done in mundane work, and both will accompany each other and love to spend your quality time with each other, and will never miss any opportunity to be close with your person. So that was for today. If you like this video, don't forget to like, share and subscribe to my channel. I will meet you in my next video. Till then, bye bye. Hello group number 2. Today we are going to see how will be your relationship with your future spouse. So we have 10 of Pentacles, Page of Swords, Queen of Wands, the Lovers card, Fighting and the Creator card. So
At first, we have Ten of Pentacles. So, your relationship with your future spouse will be prosperous. You two will share a strong bond. Your marital life will be peaceful and both of you will feel very happy. As you are destined to have a rich spouse, you both are going to enjoy finer things in your life. Plus, also appreciate the simple joy. Irrespective of your surrounding wealth, you both will enjoy each other's company a lot. In this relationship, both will be each other's cheerleader. The next card here we have is Page of Swords. So, for some of you, at your initial stage of relationship, you two may have some disagreement about something, or there's a possibility that you two may have some clash of ideas or opinion, but slowly you two will start understanding each other and respect each other's feeling. The next card here we have is Queen of Wands. So your relationship will be very colorful, as this card is associated with fire energy. So in this relationship, both will be bring the light, bright and energetic side of each other. You two will have a strong spiritual connection with each other. In this relationship, you two will feel each other's emotions, feelings. As Queen of Wands also talks about social connection, so your future spouse, family, friends will accept you wholeheartedly and you will become an undividable part of their life. You will have a healthy relationship with your future spouse. Your other half will be proud that you are in their life. The next card here we have is the Lovers. So in this group, many of you, there's a possibility that many of you will have a love marriage. Here I am picking the energy that you and your person are deeply connected with each other. If there's a word I can describe this relationship or this group, then it will be the word love, because you two are like a magnet to each other, always feel attracted to each other. For some of you, your person is your soulmate. You will feel compassionate to each other. Your relationship with your spouse will be more powerful and deeper than you or anyone can think. You both will be very passionate about each other and your sexual chemistry will be mind-blowing. You both will have a mutual respect and love. So in this relationship, none of you will judge each other in negative manner. With this person, you will be like a real you. So with this person, you don't have to pretend someone else. The next card here we have is Fighting. For some of my specific viewers, your future, there's a possibility that in your past, or maybe it may be resonate with you or maybe with your future spouse, but here's a possibility that in case of relationship, in your past you may feel hurt or they may feel hurt, or relationship becomes very painful for them. So basically you have created some strong wall surrounding you so that no one can hurt you emotionally. But here the spirit wants to tell you that in this relationship with your future spouse, you can break down all those walls. Here I feel that your person will love you and cherish you and never going to break your heart. The last card here we have is the Creator. So in this relationship with your future spouse, your relationship with your future spouse is going to be very creative. In this connection, both of you will work on yourself. Here we can say that this relationship will bring the best for you, because it will bring the best version of yourself. You will to know your true potential. So your person's presence in your life will be like a blessings for you. So that was for today. If you like this video, don't forget to like, share and subscribe it to my channel. I will meet you in my next video. Till then, bye bye. हेलो माय लवली सोल्स, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा होगा। तो एक जनरल रीडिंग है, आप वही मैसेजेस ली जो आपके साथ रेजोनेट करते हो और बाकी को छोड़ दीजिए। मैं आपको ये है, हमारे पास 2 ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2।
आप अपना इंट्यूशन यूज़ करके कोई भी एक ग्रुप चूज कीजिए। मैं आपको ग्रुप नंबर 1 में मिलती हूँ। हेलो ग्रुप नंबर 1, आज हम देखने के लिए जा रहे हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। तो हमारे पास है 6 ऑफ वंस, 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, प्लेफुलनेस, अवेयरनेस एंड ऑर्डिनरीनेस कार्ड। सो फर्स्ट हमारे पास है 6 ऑफ वंस का ये कार्ड। तो आपका रिलेशनशिप, आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ जो आपका रिलेशनशिप होगा ना, वो बहुत एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप होगा। अपने मैरिज को लेके आपका जो इमेजिनेशन है ना, वो इस रिलेशनशिप में वो फुलफ़िल होने वाला है। या फिर ये कहो कि आपका जो मैनिफेस्टेशन है ना, अपने जो आपके फ्यूचर स्पाउस को लेके आपने जो मैनिफेस्ट किया था ना, वो वाकई में रियलिटी बनने वाली है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि कुछ लोगों के लिए अगर आपके मैरिज को लेके आपके दिल में कोई डाउट है या फिर आपके दिल में कोई फियर है, तो आप यहाँ पे रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि यूनिवर्स ने आपके लिए बेस्ट ही चुना है। और इस रिलेशनशिप में ना आप बहुत खुश रहने वाले हो, और आप दोनों ना एक पावर कपल की तरह होंगे, और आप लोगों की रिलेशनशिप को देख के बाकी लोग आप लोगों से इंस्पायर होने वाले हैं। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है 10 ऑफ कप्स का। सो ये रिलेशनशिप आप दोनों के लिए ना बहुत कंटेनमेंट लेके आएगा, फुलफिलमेंट लेके आएगा। आपके फ्यूचर स्पाउस, आपके बेस्ट फ्रेंड, आपका रिलेशनशिप आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ बहुत अच्छा होगा। और मुझे यहाँ पे दोनों के बीच ना एक बेस्ट फ्रेंड वाइब दिखाई दे रहा है, और इस कनेक्शन में ना आप दोनों बहुत ब्लेस्ड फील करने वाले हो। और जहाँ तक कि 10 ऑफ कप्स आपको ग्रुप एक्टिविटीज़ के बारे में भी बोलते हैं। तो अगर आपके दिल में कोई बिज़नेस आइडियाज़ है और आप पार्टनरशिप के लिए देख रहे हो, तो शायद ऐसा भी हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस आपके बिज़नेस में आपके बेस्ट पार्टनर बन सकते हैं, ऐसे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ ना अपना बहुत एक इमोशनली फुलफिल महसूस करोगे। और ये कार्ड ना आप 10 ऑफ कप्स हमें विश फुलफिलमेंट की बात भी करता है। तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है ना आपके मैरिज के बाद आपकी कोई एक बड़ी विश फुलफिलमेंट होने वाली है। नेक्स्ट कार्ड हमारा है 7 ऑफ पेंटिकल्स का। तो यहाँ पे कुछ व्यूअर्स के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ जो आपका रिलेशनशिप है ना, वो स्लोली ग्रोथ करेगा। और मुझे यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कुछ लोगों के लिए आपका ये अरेंज मैरिज होगा। तो आप दोनों के बीच में एक दूसरे को जानने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए आप लोगों को थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जब आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ पाओगे, जान पाओगे, तो तब आप एक दूसरे के साथ अच्छे से एक रिलेशनशिप बॉन्ड कर पाओगे, या फिर ये कहो कि आप दूसरे के साथ लव रिलेशनशिप में आ पाओगे। नेक्स्ट हमारे पास है कार्ड है प्लेफुलनेस का कार्ड। तो यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के रिलेशनशिप है ना, जो एक दूसरे के साथ ये बहुत लाइट हार्टेड होगा एंड फन लविंग ऐसा रिलेशनशिप होगा। और आपके पर्सन ना आपको हंसा के आपके चेहरे पे स्माइल देके उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे बहुत पॉसिबिलिटी है कि वो आपको बहुत कुछ जोक्स सुना सकते हैं ऐसा, ताकि वो आप हंसे, और उन्हें आपको हंसाना बहुत पसंद होगा, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और इस इंसान के साथ रह के ना आप खुद का जो आपके पास इनोसेंस है, इनर चाइल्ड है ना, वो इस इंसान के साथ रह के आपका वो बाहर आ पाएगा या फिर सरफेस में आएगा। और ये इंसान ना मुझे दिखाई दे रहा है कि प्लेफुलनेस का कार्ड से ये इंसान आपको हमेशा प्यार करेंगे, और आपके रिलेशनशिप को आपको हमेशा चेरिश करेंगे, और ना वो हमेशा अपने लास्ट ब्रेथ तक हमेशा आपका ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है अवेयरनेस कार्ड का। तो आपके रिलेशनशिप में आप दोनों ना जब रिलेशनशिप में आओगे या फिर आपके मैरिज के बाद आप दोनों के लिए एक नया स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अवेयरनेस का कार्ड है। तो मुझे यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप धीरे धीरे ना इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद आपको पता चलेगा कि आपके लाइफ में कुछ इंसिडेंट्स या फिर कुछ इवेंट्स क्यों हुए थे, किस लिए हुए थे। कुछ ऐसे सिचुएशंस शायद आपको अच्छा ना लगे, लेकिन वो सब क्यों हुआ था वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। और
यहाँ पे ना आप एक दूसरे को बहुत हेल्प करोगे, ताकि अगर आपके दिमाग में कोई इल्यूशन है किसी भी चीज़ को लेके या फिर कोई भी बात को लेके कुछ इल्यूशन अगर है, तो आप एक इस रिलेशनशिप आप दोनों को हेल्प करेगा उस इल्यूशन से बाहर आने में। और हमारे पास लास्ट कार्ड है ऑर्डिनरीनेस का। तो यहाँ पे ना इस मैरिज में अपना एक दूसरे को बहुत खुश। लास्ट कार्ड हमारे पास ऑर्डिनरीनेस का है। तो इसलिए मैरिज में ना आप एक दूसरे को अब एक दूसरे में बहुत खुशियाँ ढूंढ पाओगे, और अपने लाइफ में ना छोटी छोटी चीज़ों पे आप खूबसूरती या फिर ब्यूटी ढूंढ पाओगे डे टू डे लाइफ के जो एक्टिविटीज़ के बारे में है। तो यहाँ पे ये कार्ड से मुझे ये एनर्जी महसूस हो रहा है कि ना आप दोनों ना एक दूसरे के कंपनी बहुत इंजॉय करने वाले हो, और आप मतलब कोई भी काम हो आप एक दूसरे के साथ करना, मतलब जैसे आप कोई छोटी छोटी काम, जैसे आप घर की साफ़ सफाई हो गया, या फिर अपना डिश क्लीनिंग हो गया, या फिर कुछ हर छोटी छोटी चीज़ें एक दूसरे के साथ आप लोग टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद करोगे। और वो ये चीज़ें, ताकि यहाँ पे ये कार्ड मुझे ये एनर्जी यहाँ पे महसूस हो रहा है कि ना आप कोई भी एक मौका नहीं छोड़ोगे जहाँ पे आप एक दूसरे के साथ क्लोज में आ सको। तो ये था आज के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, आज हम देखने वाले हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। तो हमारे पास कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स का, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वंस, द लवर्स कार्ड, फाइटिंग कार्ड एंड द क्रिएटर कार्ड। सो फर्स्ट हमारे पास है 10 ऑफ पेंटिकल्स का। आपका रिलेशनशिप आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ बहुत प्रॉस्परस होने वाले हैं, और आप दोनों ना एक दूसरे के साथ बहुत एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर करने वाले हो, और आपके मैरिज लाइफ बहुत पीसफुल और हैप्पी रहने वाले हैं। और यहाँ पे मुझे दिखाई दे कि आप एक ना बहुत रिच मैरिज के लिए डेस्टाइन्ड हो। ये आपकी डेस्टिनी में है कि आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है ना वो बहुत रिच होने वाले हैं। और यहाँ पे आप दोनों ना लाइफ में जो फाइनेंस चीज़ें हैं, मतलब खूबसूरत चीज़ें हैं, उन सबको आप मतलब इंजॉय कर पाओगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और आप साथ ही साथ अपने लाइफ की जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, उनको भी आप इंजॉय करने की ख्वाहिश रखोगे। और भले ही आपके पास जितने भी वेल्थ क्यों ना हो, आप कितने पैसों से ही क्यों ना मतलब गिरे हुए हो, लेकिन आप ना एक दूसरे के साथ एक दूसरे के कंपनी बहुत इंजॉय करने वाले हो, और यहाँ पे ना आप एक दूसरे के चीयर लीडर ऐसा बन पाओगे। नेक्स्ट कार्ड हमारा है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का। तो यहाँ पे कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पे ये हो सकता है कि इनिशियल स्टेज में आपका जो मैरिज है ना, वो आपके मैरिज के इनिशियल स्टेज में आप दोनों के बीच शायद कुछ चीज़ों को लेके या फिर कुछ आइडियल्स को लेके थोड़ा डिसएग्रीमेंट होने के चांसेस है। लेकिन यहाँ पे भले ही थोड़ा क्लैश क्यों ना हो, आप दोनों के आइडिया के बीच क्यों ना क्लैश हो, लेकिन आप स्लोली आप दोनों एक दूसरे को समझ पाओगे और एक दूसरे के जो फीलिंग्स हैं उसको रेस्पेक्ट करोगे। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है क्वीन ऑफ वंस का। तो यहाँ पे आप लोगों के रिलेशनशिप ना एक बहुत कलरफुल रिलेशनशिप होने वाले हैं। और ये कार्ड जैसे कि क्वीन ऑफ वंस फायर एनर्जी है, तो आप दोनों के रिलेशनशिप में ना आप इस रिलेशनशिप में आप एक दूसरे के जो ब्राइट साइड है और एनर्जेटिक साइड है ना, उस एनर्जेटिक साइड को आप ना बाहर एक्सप्रेस करोगे। और यहाँ पे मुझे आप दोनों के बीच इस रिलेशनशिप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आप एक दूसरे के ना फीलिंग्स को, इमोशंस को बहुत आप सेंस कर पाओगे। और वैसे भी क्वीन ऑफ वंस आपको सोशल एसोसिएशंस के बारे में भी बोलता है, तो यहाँ पे ये चांस है कि ना अपना यहाँ पे ये मुझे महसूस हो रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस की जो फैमिली है या फिर उनके फ्रेंड्स हैं ना, वो आपको होल हार्टेडली एक्सेप्ट करेंगे और अपना उनकी लाइफ के एक अनडिवाइडेबल पार्ट बनने वाले हो। और आपके रिलेशनशिप आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ बहुत हेल्दी होगा और वो हमेशा आपको लेके हमेशा प्राउड कर पाएंगे, एक ऐसे इंसान है। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है द लवर्स कार्ड। सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि
यहाँ पे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ ये है कि आपके ना मैरिज ना आप एक लव मैरिज के चांसेस मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे ये मुझे एनर्जी पिक कर पा रही हूँ कि आप ना आपका और आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ एक बहुत डीप कनेक्शन होने वाले हैं। और अगर मैं इस ग्रुप के बारे में बेसिकली बोलूँ तो अगर इस ग्रुप को कोई भी एक वर्ड में अगर मैं डिस्क्राइब कर पाऊँ तो ये है कि मतलब वो वर्ड लव होगा। क्योंकि यहाँ पे ना मुझे आप दोनों के रिलेशनशिप में दिखाई दे रहा है आप एक दूसरे की तरह मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट होने वाले हो और हमेशा वो अट्रैक्ट आप दूसरे को आप एक दूसरे की तरफ हमेशा अट्रैक्टिव फील कर पाओगे। और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, यहाँ पे कुछ व्यूअर्स के लिए ये मैसेज है कि आप अपने ना सोलमेट के साथ आपके मैरिज होने वाले हैं। और इस रिलेशनशिप में ना आपके रिलेशनशिप आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। आप जितना सोच रहे हो ना आप एक दूसरे के साथ आप दोनों के रिलेशनशिप आप जितना स्ट्रॉन्ग समझ रहे हो ना उससे भी ज़्यादा आपके रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होंगे और आप दोनों का प्यार बहुत ज़्यादा होगा। और आप दोनों में एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट और लव हमेशा रहेगा। और इस रिलेशनशिप में ना आप कभी भी एक दूसरे को कभी भी निगेटिवली जज नहीं करोगे। और यहाँ पे मुझे यह लग रहा है इस इंसान के साथ रह के ना आप अपने ट्रू सेल्फ को इस इंसान के सामने आप रख सकते हो। या फिर मुझे ऐसा मैं ये बोलूँ कि इस इंसान के साथ आपको कोई मतलब प्रिटेंड नहीं करना पड़ेगा। आप एक दूसरे इंसान की तरफ दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस इंसान के साथ। नेक्स्ट कार्ड हमारा है फाइटिंग का। तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक व्यूअर्स के लिए यहाँ पे मुझे पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रहे हैं कि शायद ये आपके साथ रिजोनेट करते हो या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ ये बात रिजोनेट करते हो। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि ना रिलेशनशिप के मामले में यहाँ पे जब मैं रिलेशनशिप बोल रही हूँ ज़रूरी नहीं कि ये लव रिलेशनशिप है या फिर फैमिली के साथ रिलेशनशिप या फ्रेंड के साथ। लेकिन कुछ ऐसा हुआ है कि इस रिलेशनशिप में ना आप लाइफ के कुछ रिलेशनशिप में आपने बहुत पेन महसूस किया है, बहुत हार्ड फील आपको हुआ है। सो यहाँ पे आप बेसिकली ना अपने सराउंडिंग में आपने एक वॉल क्रिएट करके रखा है कि ताकि कोई दूसरा आपको इमोशनली मतलब हर्ट नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ पे स्पिरिट आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि इस रिलेशनशिप पे आपके फ्यूचर्स के साथ आपका जो रिलेशनशिप है ना उस रिलेशनशिप में आप अपने जो दीवार क्रिएट करके रखा है ना अपने सराउंडिंग्स में, वो दीवार आप तोड़ सकते हो और इस इंसान के साथ आप अपना ट्रू सेल्फ दिखा सकते हो कि आप जो भी महसूस करते अपने दिल में जो भी आपके फीलिंग्स है या फिर आप जो भी महसूस करते हो ना वो इस इंसान के साथ आप शेयर कर सकते हो। और यहाँ पे ना ये इंसान कभी भी आपको मतलब आपका हार्ट नहीं ब्रेक करे, आपका हार्ट कभी ये इंसान ब्रेक नहीं करेगा। और ये इंसान हमेशा आपको आपको हमेशा प्यार देंगे और हमेशा आपके रिलेशनशिप को और आपको हमेशा चेरिश करने वाले एक ऐसे इंसान रहेंगे। और लास्ट कार्ड हमारा है क्रिएटर का कार्ड। तो आपके ना आप रिलेशनशिप आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ बहुत क्रिएटिव होने वाले हैं। और इस कनेक्शन में ना आप दोनों ना अपने खुद के ऊपर बहुत काम करने वाले हो। या फिर मैं ये कहूँ कि ये रिलेशनशिप ना आपके दोनों के लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि ये रिलेशनशिप आपको अपने ट्रू पोटेंशियल के साथ इंट्रोड्यूस करवा देंगे। और यहाँ पे मुझे ये लगता है कि ना इस रिलेशनशिप में जब इस इंसान के साथ आओगे या आपका रिलेशनशिप होगा, ये रिलेशनशिप आपके लिए एक ब्लेसिंग्स की तरह होगा। तो ये था आज के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।